हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जॉन पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल लेट्स लर्न विद पैसन पर। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45 यानी कि 3:45 हो रहे हैं। टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू टैकल मल्टीपल एग्जाम इन वन गो। सो इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा EPFO, LIC एंड वर्ग एक इंग्लिश का, तो मैं इन तीनों को एक साथ प्रिपेयर करने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को भी ये एग्ज़ाम देनी हो, UPSC, EPFO, AO, APFC, LIC और वर्ग एक टीचिंग की एग्ज़ाम MP में, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने सोर्सेज, अपना प्लान जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। So before starting the video, let me give you a brief introduction about me. So as I have mentioned that my name is Chan Pooja and I'm 29-year-old. I'm a mother of a 3-year-old boy. His name is Virat and I have appeared in UPSC Civil Services preliminary exams in 2020, but I couldn't make it by that time. And after that, because of some personal responsibilities, I was not able to prepare well for the exam. So I kind of took a break from studies, and now since my baby is 3 year old and started going to school in nursery, so that's why I started preparing again. And currently जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर each and every exams together simultaneously. I am going to prepare for these exams. And last year in 2024 I have cleared CTET exam, that is Central Eligibility Test for Teachers. तो मैंने वो क्लियर किया था एंड सिंस देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर KVS ऑल्सो, बट देर इज़ नो वैकेंसी रिगार्डिंग दैट एज पर द कैलेंडर ऑफ मध्य प्रदेश. दे आर गोइंग टू कंडक्ट वर्ग एक की एग्जाम, सो दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो. इंग्लिश लिटरेचर, that is my stream. And yes, and that's it for my introduction. And without further ado, let's jump into the video. This is my master plan to clear UPSC, AO, APFC and LIC and Vargek also. Why I am calling this plan as a master plan? Because I have taken all the subjects of these exams which are mentioned in the syllabus and have made the holistic plan, so that by minimum effort I will get more. So in UPSC, AO and APFC and LIC exam बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और जैसे कि अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग जो है वो UPSC, AO, APFC का पार्ट है, बट देर इज़ एन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट ऑल्सो इन APFC एंड इट इज़ द एक्सटेंसिव सब्जेक्ट इन दी LIC. So what I'm gonna do is, after doing accounting, I'm gonna jump on the insurance, so that by the October I will be able to answer the questions which are coming from the insurance section. And apart from that, maths and reasoning is there. Maths and reasoning is common in both the exams, this AO and EPFO and LIC. So I will be giving more time, like more than 2 or 2.5 hour to the maths and reasoning part in a day. And then comes to the English part. See, English is something which is common in all three exams, like AO, LIC and Varg ek. So what I'm gonna do, I'm gonna do on an alternative basis. What I will do is, in English if I'm devoting 1 hour to English, it might be vocab and grammar, or इट कुड बी इंग्लिश लिटरेचर. ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आज मन हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर करने का, तो आई विल बी डूइंग 3 days इंग्लिश लिटरेचर एंड देन 3 days ऑफ वीक टू ग्रामर, है ना. तो इन दिस वे आई विल बी कवरिंग बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दीज 3 exams, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो.
See, this is industrial laws, labor laws, and social security, which is part of UPSC, APFC, EPFO, and this is GS. Again, it is the common subject in both the exam, the LIC and APFC. So this is something which is in overlapping with both the exams, and in Varg 1 2 also there will be some question from GS. So I will be preparing in a holistic manner so that I will able to answer each and every questions of these exams. And apart from this the above subject, there is these two subjects also, which have a good weightage in APFC and AO exam, that is computer and science. This was the whole syllabus for the exam. And here is the another thing, which is डे टू डे प्लान है. इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट. दिस मेक्स फिट फॉर मी, एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना प्लान बना सकते हैं. सो इन द मॉर्निंग सेशन देर विल बी 3 आवर सेशन रहेगा, फ्रॉम 3:30 to 6:30. ठीक है, 3 घंटे का ये सेशन रहता है, जिसमें मैं 1 IR को दूंगी, एक घंटा सोशल सिक्योरिटी को और 1 घंटा कंप्यूटर को. क्यों मैं इनको ज़्यादा अभी दे रही हूँ स्टार्टिंग के सेशन में? बिकॉज आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस 3 बाय एंड ऑफ अगस्त. तो मैं अगस्त के एंड तक इन तीनों को कंप्लीट कर देना चाहती हूँ. दैट इज़ वाई मैंने इनको सबसे पहले रखा है, बिकॉज ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में आएंगे, दैट इज़ इन APFC. तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको जल्दी से कवर करूँ. एंड आफ्टर दैट आई विल डू सम लाइट एक्सरसाइज एंड सम होम कोर्स विच आई हैव टू डू डेली, लाइक प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एंड अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल मतलब के लिए प्रिपेयर करना, लंच बॉक्स एंड ऑल. सो आफ्टर दैट गेटिंग फ्रेश एंड घर का सारा काम करने के बाद सेकेंड सेशन में आई विल बी डूइंग लाइक 8:45 से 12:45, दैट इज़ 2 आवर्स. आई विल बी डूइंग 1 आवर इंग्लिश ग्रामर कर लूँगी या फिर लिटरेचर कर लूँगी, डिपेंड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 days ग्रामर, 3 days लिटरेचर, एंड आफ्टर दैट इन वन जो लेफ्ट 1 आवर है उसमें मैं साइंस या फिर अकाउंटिंग, इन दोनों में से कोई एक कर लूँगी. ऐसे ही अगर साइंस करूँगी तो 3 days साइंस करूँगी, और अकाउंटिंग करूँगी तो 3 days अकाउंटिंग करूँगी, सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहती है और बोरियत भी नहीं होती किसी एक सब्जेक्ट को लेकर. एंड देन कम्स टू दी थर्ड सेशन, दैट विल बी इन मिड डे रहेगा वो, लाइक फ्रॉम 2:30 PM to 4 PM. ये थोड़ा वरी कर सकता है क्योंकि मेरा बच्चा कब सोएगा, मैं सो जाता है तब पढ़ूंगी ये, क्योंकि 4 बजे तक ही कर सकती हूँ, क्योंकि 4 से 6 बजे तक का जो है मेरा सेशन, ये मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा ट्यूशन रहता है. आई यूज़ टू टेक ट्यूशन क्लासेस, तो मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ अप टू 8 क्लास. तो वो बच्चे आते हैं, तो मैं ये सेशन इसमें अपना सेशन नहीं बना सकती हूँ. बट आप चाहें तो आप अपनी डे की दिनचर्या या शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना ये जो प्लान है इसको 2:30 से 4 to 7 कर सकते हैं, या फिर 3 to 5 कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करूँगी, एंड ऑफ द डे आई विल बी डूइंग क्विक रिवीजन. जो जो मैंने किया है पूरे दिन में उसका क्विक रिवीजन करेंगे विदाउट यूजिंग पेन. जस्ट गो थ्रू इट कि अच्छा ये ऐसे किया था. एंड देन व्हाट आई एम गोना डू बिफोर स्लीप, after taking dinner, before sleep, what you should do, you should definitely solve some MCQs regarding the subject which you are studying by that time. तो अभी मैं जो IR कर रही हूँ या सोशल सिक्योरिटी कर रही हूँ, कंप्यूटर कर रही हूँ, या फिर ग्रामर, साइंस जो भी कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उनसे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करूँगी. विथ इट कैन बी PYQs ऑल्सो, और फॉर दिस आई एम एक्सटेंसिवली यूजिंग चैट GPT. तो आप भी चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं, और फ्री में वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो जाते हैं, और आप वहाँ पे जाके अपनी क्वेश्चन आंसर जो MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए. सो दिस इज़ माई डे टू डे प्लान. आई होप ये आपको अच्छा लगा हो.
So this is my master plan and this is how I'm going to invest my time for these exams. आई होप आप लोगों को ये प्लान अच्छा लगा हो और इसको ये बहुत ही लाइक इतना टाइट स्केड्यूल में नहीं बनाया है मैंने. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी एंड द स्केड्यूल विच आई हैव फॉर द डे. सो आप इसको अपने हिसाब से भी तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना सकते हैं. एंड येस, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ आप किसी भी टाइम पे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. और एक और चीज़, अगर आपका मैथ्स वीक है यानी कि आपके आंसर्स तो एक्यूरेट आते हैं लेकिन स्पीड कम होने की वजह से आप कभी कभी चीज़ें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ दिस इंस्पेक्टर चालीसा, this book is really good and I bought both of them from Amazon, and this is for reasoning purpose, blue one, and this is for maths purpose. So मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस ऑल्सो बाय कंप्लीटिंग वन टॉपिक. लाइक इफ़ आई हैव कंप्लीट नंबर सिस्टम, तो मैं नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आई डू प्रैक्टिस दैम. एंड कई बार होता है कि मेरी एक्यूरेट आंसर्स होते हैं, स्पीड कम होती है, तो आई डू प्रैक्टिस माई स्पीड फ्रॉम दीज बुक्स. सो ये भी एक अच्छा आपके लिए बोनस रहेगा कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप इस तरीके से अपनी मैथ्स को कवर अप कर सकते हैं. एंड अगर आपको और भी अगर मेरे सोर्सेज जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो ऑफ दिस वीडियो. एंड yes, this is it for this video. I hope you do like this video and share with your friends. Thank you.